Assalamu alaikum students, this is your teacher Rizwan Ali Pandit. Today our topic is what are the differences between unicellular and multicellular organisms. Differences between unicellular and multicellular organisms. Unicellular organisms Unicellular organism consists of a single cell. As you know that this unicellular organism it consists of only single cell, whereas multicellular organism consists of a large number of cells, or we can say more than one cell. Next, unicellular organism. In unicellular organisms, the single cell performs all the life activities, whereas in case of multicellular organisms, a single cell performs only one or few activities. In unicellular organism, there is no division of labor. There is no division of labor. Single cell performs all the activities, whereas in case of multicellular organism, there is division of labor as cells are specialized to perform different functions of the body. In case of unicellular organism, single cell is involved in the production of new organism during reproduction, whereas in case of multicellular organism, only germ cells take part in reproduction. Germ cells means sex cells. In case of multicellular organism, only germ cells take part in reproduction. As we know, in multicellular organism there are various types of cells which perform different functions. Germ cells take part in reproduction, whereas in unicellular organism, single cell is involved in the production of new organism. अगर हम एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एमोबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम एटसेट्रा. Whereas in case of multicellular organism, examples of plants and animals. कि प्लांट सेल होती है मल्टीसेलुलर, एनिमल सेल होती है मल्टीसेलुलर. जो होता है एमोबा वो होता है सिंगल सेल यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया होते हैं यूनिसेलुलर. ऐसे ही ये पैरामीशियम है वो भी हैं यूनिसेलुलर. ये हुआ based on the number of cells. If organism contains only one cell, they are called unicellular. If it contains more than one cell, the organism is called multicellular. Now next, based on complexity of organization. Cells can be divided into two types: prokaryotic cell and eukaryotic cell. अब नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन करेंगे सेल की ऑन द बेस ऑफ complexity of organization. Cells can be divided into two types: prokaryotic cell and eukaryotic cell. So let us start. What are the differences between prokaryotic cell and eukaryotic cell? Prokaryotic cell is generally smaller in size. It is generally smaller in size. The size ranges from 1 to 10 micrometer. Whereas eukaryotic cell is generally larger in size. The size ranges from 5 to 100 micrometer. Next difference is, in case of prokaryotic cell, nucleus is absent. True nucleus is absent. Genetic material, or we can say nucleoid, is not surrounded by a न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जो इसका क्रोमोसोम्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल हो, इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड. इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स द जेनेटिक मटेरियल इज न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड मीन्स विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. व्हेयरएज इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स true nucleus is present. We can say nucleus is present. When we say nucleus is present, that means nuclear material is surrounded by a nuclear membrane. In case of prokaryotic cells contains
single chromosome. Only one chromosome is present in case of prokaryotic cells, whereas in case of eukaryotic cells, more than one chromosome is present. It contains more than one chromosome. Fourth difference is nucleolus is absent. Nucleolus होता है एक organelle, cell organelle in this nucleus, but in case of prokaryotic cells, this nucleolus is absent, whereas in case of eukaryotic cells, nucleolus is present. Fifth difference is membrane bound cell organelles are absent. Membrane bound organelles वो cell organelles जिनके इर्द गिर्द membrane होते हैं, जो जिनकी कवरिंग होती है, वो absent होते हैं किसमें? Prokaryotic cell. Whereas in case of eukaryotic cell, membrane bound cell organelles are present. Membrane bound cell organelles are present. For example, nucleus is membrane bound cell organelle. Mitochondria is membrane bound cell organelle. इसी तरह हम देखिए क्लोरोप्लास्ट इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल. इसी तरह गोल्गी apparatus इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल. इसी तरह ER endoplasmic reticulum is membrane bound organelle. These membrane bound organelles are present only in case of eukaryotic cell, whereas in case of prokaryotic cell they are absent. अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे किसकी, एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल किस में कौन कौन है प्रोकैरियोटिक सेल? हम बोलते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक सेल. इसी तरह ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज साइनोबैक्टीरिया. बैक्टीरिया ये हमारे क्या, इनको बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से एग्जांपल है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया. इसी तरह आता है यूकैरियोटिक सेल में. यूकैरियोटिक सेल की जो हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल की दिस एग्जांपल इसमें आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, इसी तरह फंजे, इसी तरह प्रोटिस्ट्स. ये है इनकी एग्जाम्पल. अगर हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में होता है पहली डिफरेंस जो होती है उसमें होता है न्यूक्लियड प्रेजेंट. न्यूक्लियड मीन्स विथआउट न्यूक्लियस, विथआउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब अगर हम देखेंगे उसकी दिस डायग्राम भी, ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल है ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल. आप देख सकते हैं इसमें क्या है? न्यूक्लियड है, न्यूक्लियड है. आपको कोई भी इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं देगा. राइबोसोम्स है इसमें, क्योंकि राइबोसोम्स है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में आता है. इसी तरह इसका देखो आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है, राइबोसोम्स होते हैं, मेसोसोम्स होते हैं. यह है कौन सी? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया. अगर हम देखेंगे दिस यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में दो किस्म की सेल्स आती हैं. प्लांट सेल आती हैं, एनिमल सेल आती हैं. अगर हम देखेंगे पहले एनिमल सेल, देखो एनिमल सेल में होता है, देखो आप देख सकते हैं एनिमल सेल में पहले आप देखते हैं न्यूक्लियस. ये है न्यूक्लियस, सारा रीजन ये न्यूक्लियस का है. ये इर्द गिर्द इसके न्यूक्लियर इनवोल्यूप, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस में ही होता है क्रोमेटिन होता है, यहाँ होता है न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं. ये है हमारा न्यूक्लियस, सारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियोप्लाज्म. ये सारा हमारा इसके पोरोस होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोरोस. ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस. इसी तरह इसमें होता है
जो ये यूकैरियोटिक सेल है, ये भी यूकैरियोटिक सेल है, ये भी यूकैरियोटिक, ये है एनिमल सेल, ये है प्लांट सेल। हम देखेंगे बाद में डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। देखो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी तरह ये है लाइसोसोम्स है, इसी तरह अगर आप देखो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये, इसी तरह आप ये देख सकते हैं ये है गोल्गी कम्प्लेक्स, इसी तरह बहुत सारे इसमें है क्या, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है, वो होता है साइड में। अगर हम देखेंगे न्यूक्लियस कहाँ है, इसका न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, देखो इसके बीच में होता है, एनिमल सेल के बीच में होता है, यूजुअली सेंटर में होता है, इसके बीच में, क्योंकि इसका जो है ये है वैक्यूल, ये वैक्यूल ज़्यादा जगह पकड़ता है, ज़्यादा स्पेस लेता है सेल की, कौन, वैक्यूल। इस तरह इसमें देख सकते हो आप ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड, ये हैं डिफरेंसेस बिटवीन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। थैंक यू, गुड बाय।